Hello students, good morning. In previous class, already we discussed about the wave nature of radiations. Wave nature means wave nature of electromagnetic spectrum or radiations. Okay, just like in previous days already we discussed about different types of spectrum, just like radiations, just like radio waves, microwaves, UV rays, infrared rays. So already we discussed about what is their frequency, what is their wavelength, and what is the relation between wavelength and frequency. So already discussed about and related with their about what related with their frequency, and what is their wave number. So related with the numericals already we discussed in previous days. How can you find their frequency, and wavelength, understand. So today we'll discuss about what particle nature of electromagnetic radiation, that is Planck's quantum theory, understand. So today we'll discuss about the particles nature of electromagnetic radiation. What the particles nature, of electromagnetic radiation. Also we can say that Planck's quantum theory. This is also known as Planck's quantum theory. So let's see, given there कि some of the experimental phenomenon such as diffraction, ठीक है, तो radiation also occurs diffraction and interference, understand. Diffraction, you know about ना, diffraction means what is the mean diffraction. So diffraction means the bending of the waves when a ray of light या radiations passing through the medium, then when striking, then after it bends, the bending of the waves is known as diffraction. Bending of the waves मतलब मुड़ना, bending, understand, that is known as diffraction. And interference, what do you mean by interference. The interference also we can say that waves are joining of the waves, combining of the waves particle, understand. What do you mean by bending of the wave around an obstacle. What do you mean by interference is a combination of two waves in the same or different frequency, understand. Also we can say that what interference means. What interference means the combining of the two or more waves with their frequency, either with their frequency, understand, in a fixed position or fixed medium, that is known as what interference. While diffraction is the bending of waves, in medium या different medium या same medium. तो कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो यही जो है आपके मेन टू थिंग्स विच डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. दिस आल्सो कैन बी एक्सप्लेन बाय है ना द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कि क्या है, व्हाट इज द वेव नेचर, अंडरस्टैंड. तो हाउ एवर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना, गिवन द सम ऑब्जर्वेशन, है ना, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन 19th सेंचुरी नोन एज द क्लासिकल, है ना, थ्योरी, ए क्लासिकल फिजिक्स. तो व्हाट इज देयर, है ना, गिवन देयर. लेट्स सी one by one. So first what is given there कि the nature of emission of radiations from hot body, that is black body radiation. Black body radiation, you know what black body radiation means क्या कि when we heated up the, है ना, any surface of the metal, one corner of the metals, then क्या होती है, what happens, they are, है ना, create the intensity. Intensity means तीव्रता, है ना, ज्वलन. And it's also due to the presence of the free electron in metal, they also heated up to other side of the, है ना, other corner of the metal, understand. तो इन दिस वे कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन. इमिशन मीन्स, है ना, व्हाट मोमेंट ऑफ द या इमिशन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, रिलीज ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम द हॉट बॉडीज. हॉट बॉडीज से इमिशन जो होती है, रिलीजिंग होती है ना. तो वही क्या आपका नेचर है, नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशंस, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकेंड क्या है आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस. वही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट हो रही है, इमिटेड न्यूट्रल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक. जब रेडिएशन स्ट्राइक होती है, आफ्टर द स्ट्राइकिंग रेडिएशन ऑन मेटल सरफेस, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, इजेक्शन, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कितना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ. फोटो इलेक्ट्रिक मतलब व्हाट इज द, है ना, व्हेन सनलाइट, या सन रेज आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, रिमूव फ्रॉम दैट सरफेस, अंडरस्टैंड. थर्ड, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. कि वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी कि व्हाट इज द हीट कैपेसिटी देयर, है ना, व्हाट इज द वेरिएशन, वेरिएशन कितना है, हाउ मेनी, है ना, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस. ठीक है, कि हीट कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है ऑफ सॉलिड्स एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि क्या टेम्परेचर का फंक्शन है, अंडरस्टैंड. लास्ट नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन. कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, यू नो अबाउट ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसा उसका स्पेक्ट्रम है ना, हाउ मेनी ऑब्जर्व दे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्विंग वेवलेंथ. कितना वे शो वेवलेंथ को शो करता है, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम क्या है. तो ऑल दिस गिवन थिंग्स, इट इज नॉट, है ना, नोट वर्दी दैट द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस.
was given by Max Planck. Okay, तो black body radiation given by the Max Planck in 1900. This phenomenon given below. क्या है इसका कि when solids are heated then emit radiation. You know what ना? When any solid is heated up then it's get what? Release radiations, emit radiations over a wide range of wavelength. और कितने में? Wide range of. उसका wavelength क्या होगा? Larger. फॉर एग्जाम्पल वेन आयरन रोड ई हीटेड इन फर्नेस, फर्नेस में जब हम क्या करते हैं हीटेड, तो इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड, पहले क्या होता है वो डल रेड होती है, एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, और आफ्टर दैट क्या होती है प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूसली क्या करते हैं दे कंटिन्यूसली हाँ व्हाट लार्ज है ना व्हाट मोर अमाउंट ऑफ हीटेड जस्ट लाइक ए इंटेंसिटी दे है ना बिकम्स इंटेंसिटी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो एज दिस इज हीटेड फर्दर ओके तो द रेडिएशन इमिटेड बिकम्स वाइट, तो इससे क्या होगा रेडिएशन कैसा होता है वाइट है ना, तो रेडिएशन इमिटेड बिकम्स वाइट एंड देन बिकम्स ब्लू, और उसके बाद क्या होता है वाइट के बाद ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई. ठीक है, और जब टेम्परेचर क्या होता है बिकम्स वेरी हाई देन ओके आफ्टर द वाइट दे बिकम्स ब्लू, और वाइट के बाद क्या हो जाती है ब्लू. ओके तो इन टर्म्स है ना आल्सो वी कंसीडर क्या इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी व्हाट in terms of the frequency it means that the frequency of emitted radiation goes from a lower frequency to a higher frequency. ये lower frequency से move करता है higher frequency में, तो as the temperature increases तभी क्या होता है temperature increase करती है. when it and radiation goes from lower frequency to higher frequency then what happen then temperature will be increase. temperature क्या होता है increase होता है. understand just like you know about the red color lies in the lower frequency region. Okay, while blue color belongs to higher frequency region. Understand? Red color क्या होती है lower frequency region होती है. Okay, but higher wavelength you know about ना. But blue color belongs to higher frequency region of the electromagnetic spectrum. You know about ना what is the relation between frequency and radiation? You know about ना sorry wavelength. तो the ideal body which emits and absorbs radiation, एक ideal body क्या होता है ना which emits क्या करता है emits the है ना रेडिएशन या ऑब्जॉर्व द रेडिएशंस ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, जितने भी फ्रीक्वेंसी ऑल फ्रीक्वेंसी पे इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी. ओके एंड द रेडिएशंस इमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ओके व्हाट डू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि व्हेन ए बॉडी या सबस्टेंस या मेटल्स ओके व्हेन दे इमिट्स एनर्जी इमिट्स द रेडिएशन या ऑब्जॉर्व द रेडिएशन इमिट्स रेडिएशन या ऑब्जॉर्व्स रेडिएशन ओके ऑफ एट ऑल फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टैंड? इन दैट फ्रीक्वेंसी okay they emitted the radiations okay so in that frequency they emitted the radiation तो such a body is known as black body radiation. तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो वो क्या करती है रेडिएशन को एमिट करती है रिलीज करती है दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. जस्ट हैव टू गिवन द एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर कि व्हेन आयरन रोड इज हीटेड अप ओके देन इट बिकम्स वाइट देन आफ्टर इट्स हाई अगेन हीटेड हाई है ना टेम्परेचर देन इट्स बिकम्स ब्लू. Understand? So also we can say that the exact frequency distribution of the emitted radiation, that is intensity versus frequency, what is the intensity versus frequency curve of the radiation. तो from a black body depends only on its temperature. तो black body depend mainly किससे करता है तो black body mainly depends on the temperature. Okay, black body mainly temperature depends on temperature, and when temperature increases then what radiation will be higher emits है ना high emits of radiations. तो एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीज होगा ना विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ. यू नो अबाउट ना विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ इफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज रेडिएशंस क्या है ज़्यादा हाई देन वेवलेंथ इज लो डिक्रीजेज एंड रिचेज ए मैक्सिमम वैल्यू ओके एट ए गिवन वेवलेंथ एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ. और उसके बाद क्या होता है ये आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि मैक्सिमम वैल्यू एट गिवन वेवलेंथ वो कहाँ तक पहुँच जाती है रीचेज है ना रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. और जहाँ पे मैक्सिमम अगर हो गया लार्जर हाई वहाँ से फिर क्या हो जाएगा आफ्टर वहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट ओके एंड डिक्रीजेज ऑफ वेवलेंथ. और वहाँ से फिर क्या हो जाएंगे डिक्रीजेज है ना वेवलेंथ क्या होना डिक्रीजेज वहाँ से फिर डिक्रीज होने लगती है. जैसे यू नो अबाउट सी है दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ. ओके तो क्या होती है कि दिस इज द है ना वेवलेंथ गिवन देयर 1000 2000 3000 नैनोमीटर. दिस इज द इंटेंसिटी पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम है ना दिस इज T1 टेम्परेचर दिस इज द T2. तो T2 क्या है ग्रेटर देन T2 इज द हाई टेम्परेचर. तो आफ्टर द हाई टेम्परेचर रीचेज अस देन क्या होगा इट्स डिक्रीजेज इट्स वेवलेंथ
जब हाई इंटेंसिटी पहुंच जाती है, हाई रेडिएशंस, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, आफ्टर द रीचिंग द हाई इंटेंसिटी, हाई तीव्रता, हाई ज्वलनशील, उसका हाई कितना है रेडिएशंस, तो आफ्टर दैट क्या होता है, एट हायर प्लेसेस देन इट्स आल्सो कंटिन्यूअली डिक्रीजेज देयर वेवलेंथ्स, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो दिस इज आल्सो शो द है ना रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेज एट ए हाई position, then after it decreases, gradually decreases. Understand? Okay. So the above experimental results cannot be explained satisfactorily on the basis of the wave theory of light. तो wave theory of light को है ना ये नहीं कर पाया कि प्लैंक सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया, व्हाट, कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट एनर्जी ओनली इन व्हाट डिस्क्रिएट क्वांटिटीज। एटम्स और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ओनली स्मॉल क्वांटिटीज क्या करते हैं, है ना, एमिट्स द व्हाट एनर्जी या रेडिएशन, एंड नॉट इन द कंटिन्यूस मैनर, ये कंटिन्यूसली मूव है ना एमिट नहीं करते हैं, एंड डिस्क्रिएट अमाउंट। ए बिलीव पॉपुलर एट टाइम, प्लैंक्स गिव ए नेम क्वांटम, यू नो अबाउट, नो, इसी को क्या दिया ना क्वांटम, टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, एमिट्स, ओके, बाय द एटम्स या है ना मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज क्वांटम, दैट कैन बी इमिटेड और ऑब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसी के फॉर्म में जो क्या करते हैं, एमिट्स करते हैं या ऑब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अंडरस्टैंड। तो द एनर्जी ई ऑफ क्वांटम रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम रेडिएशन, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट्स फ्रीक्वेंसी, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी के, टू इट्स फ्रीक्वेंसी। द रेडिएशन, ओके, एनर्जी या रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इज एक्सप्रेस्ड एट ई इक्वल टू एच न्यू, यू नो अबाउट ना, ई इक्वल टू एच न्यू, ई मीन्स या एनर्जी या रेडिएशन, हाउ मेनी एनर्जी रिलीज एमिट्स या ऑब्जॉर्ब्ड, ओके, and this is what, directly proportional to frequency, you know what, now what is their frequency, okay, if energy is greater then frequency is increases, understand. H you know what, H is known as Planck's constant, H is the constant that is known as Planck's constant, है ना, their value is 6.626 10 to the power minus 34 joule second, so this is the Planck's constant, proportionality constant also we can say that, understand. So this is the relation E equal to h nu according to Planck's constant, है ना, Planck's quantum theory, no problem. With this theory Planck was able to explain, और इसी थ्योरी के अनुसार क्या उन्होंने एबल किया कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन, जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, इन द रेडिएशन फॉर्म ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर, और ये किस पे होती है, एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, ओके, ब्लैक बॉडी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और किस पे ये फंक्शनिंग करता है ब्लैक बॉडी, व्हाट, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, किस पे डिपेंड है, मेनली फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर, एट डिफरेंट टेम्परेचर पे ये है ना शो करते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके, एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, अंडरस्टैंड. तो इन दिस वे है ना, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना, क्या कैसे हम कर सकते हैं, इंटेंसिटी मतलब उसका कितना तीव्रता है, व्हाट इज द कैपेबिलिटी टू हाई, है ना, इमिट्स हाई रेडिएशन या है ना लो रेडिएशन या है ना लो एनर्जी, हाई एनर्जी. तो इन दिस वे है ना Planck's quantum was also able to explain है ना in the form of different temperature, okay, presence of different temperature, understand, no problem, okay. So this is the Planck's quantum theory, understand, yeah, electromagnetic radiations, nature of electromagnetic radiations, understand, that is the given the relation by है ना Planck's quantum E equal to h nu, understand, energy equal to you know what na frequency. And now discuss about the photoelectric effect. What is photoelectric effect? What do you mean by photoelectric effect? So you know about the photoelectric. This is also related with the photo. Photo means क्या? Sunlight. है ना? This is also effect of radiation. Also we can say that radiation. This is also phenomenon of radiation. Yeah, means also we can say that sun rays, light. Understand? And electric you know about. Okay. So in 1887 Hertz, you know about Hertz? Hesseln Hertz performed a very interesting experiment in which electrons, that is electric current, electrons means क्या, electric current, were ejected when certain metals, okay, just like example metal you know about potassium, rubidium, cesium, were exposed to a beam of light. क्या हुआ, what is given by photoelectric effect? तो according to Hertz a given experiment, क्या उन्होंने कहा कि he said that कि when a है ना in which क्या होगा कि when electrons या इलेक्ट्रिक करंट वेयर इजेक्टेड, कब होगा इजेक्ट, कब हुआ इलेक्ट्रॉन, कब रिलीज होगी फ्रॉम ए मेटल्स,
मेटल्स में यू नो अबाउट पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कि व्हेन है ना, व्हेन क्या कि व्हेन एक्सपोज टू बीम ऑफ लाइट, अब बीम ऑफ लाइट क्या होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, व्हेन ए सन रेज या सन लाइट ओके स्ट्राइकिंग ऑन ए मेटल सरफेस, देन व्हाट हैपेंस, तब क्या होता है कि सर्टेन मेटल्स है ना, दे इमिट्स व्हाट, दे इमिट्स द इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड, इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट वहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होती है, इमिट्स होती है, अंडरस्टैंड, ओके बीम ऑफ लाइट। तो द फिनोमिनन इज कॉल्ड व्हाट, तो फिनोमिनन होती है ना, फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यही जो फिनोमिनन है घटना दैट इज नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे सी द एग्जांपल गिवन हियर, दिस इज द व्हाट, दिस इज द है ना डिटेक्टर है, यहाँ पे डिटेक्टर है, दिस इज द व्हाट रिकॉग्नाइज एमीटर which measure the electric current, battery has given there, vacuum chamber, okay, metal surface is given there, understand, and this is the detector. How can we detect this arrangement? So when okay electric current is passed through them, है ना, through the ammeter measuring the current, okay, so what happens, and this is the metal surface, so when electric current pass okay and strike on the metal surface, so when light also passing है ना, light falls to the metal surface, and this is the passing of electricity, so when light falls to है ना strike on a metal surface, then what happens, it emits the electron, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, eject the electrons, electrons क्या होते हैं, ejected, understand, when a metal okay electric current, जैसे electron flow, electricity pass through the metals, understand, and when a light is fall या strike on the surface of metal, then what happen, a light is sorry electron is emits, understand, okay, तो वही कह रहा है कि स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक क्लीन मेटल सरफेस इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट हो रही है, इमिट्स, ओके, एंड द कंटेंट बाय ए डिटेक्टर दैट मेजर देयर काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रही है, क्या व्हाट इज देयर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रही है ना, इजेक्ट हो रही है, इजेक्शन इमिट्स हो रही है, वो किस क्या है, व्हाट इज देयर काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज देयर मूवमेंट, कितना उसका है ना पावर मोशन है, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द मैक्स प्लैंक ओके हु गिवन बाय मैक्स है ना फोटो इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स है ना दिस इज द फिजिस्ट, अंडरस्टैंड। तो इन दिस वे आल्सो वी कैन से दैट व्हाट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, डू यू नो अबाउट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिनन ऑफ द है ना, द फिनोमिनन ऑफ द है ना सनलाइट, सन रेज व्हेन स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस, अंडरस्टैंड, इन द इलेक्ट्रिक करंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन क्या electron is ejected from the metal surface, okay, so electron is ejected from the metal surface, so that phenomenon is known as what, photoelectric effect. So this result, what is the experiment given by the है ना photoelectric effect, तो see that first the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike on the surface, the beam of light क्या होती है, when sun rays strike on the metal surface, then after what कि electron is ejected, that is there is no time lag between the striking of metal light beam and the ejection of electron from the metal surface, उसमें कोई टाइम जो है ना, कोई टाइम से उसमें क्या होती है, ये नहीं वो रुकता है कि देयर इज नो मिनिमम टाइम, ठीक है, जैसे ही ये स्ट्राइक हुआ ऑन ए मेटल सरफेस, देन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, क्या हो रहा है, व्हाट इज सेड देयर कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ उस मेटल सरफेस से, इन दैट मेटल सरफेस, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, और किसके प्रोपोर्शनल होता है कि जितना लाइट उसमें स्ट्राइक हुआ ऑन द मेटल सरफेस, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, उसकी जितनी इंटेंसिटी होगी लाइट की ऑन द मेटल सरफेस, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट कि फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मेटल का प्रत्येक मेटल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यू नो अबाउट ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ओके ऑब्टेन्ड बाय द लाइट, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होती है, तो एट ए फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या हो जाती है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि न्यू जो है आपका गिवन फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर, अंडरस्टैंड, ग्रेटर होगी ना, तो देन आफ्टर कि द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, तो वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है,
कम आउट, वो रिलीज होते हैं, इजेक्टेड, अंडरस्टैंड, विथ सर्टन काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट मिनिमम होती है, तो सो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लार्जर न्यू। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम आउट विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, रिलीज हुए, तो उसमें क्या होता है, देयर हैव सम काइनेटिक एनर्जी, मोशन, अंडरस्टैंड, ओके। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड हुआ है, इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो इंक्रीजेज कब होगा, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है, देन आफ्टर व्हाट हैपन, kinetic energy of the electron also increases, understand. So also we can say that ejection of electron depending on the frequency of the light, okay, कि जितना फ्रीक्वेंसी होगा लाइट की उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन also we can say that, okay. तो all of the above results could not be explained on the basis of laws of classical physics, ये क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अकॉर्डिंग टू द लेटर, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बीम ऑफ लाइट ब्राइटनेस, कि कितना उसका इंटेंसिटी है, व्हाट इज द ब्राइटनेस, ओके। इन अदर वर्ड्स आल्सो वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली दिस इज डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आल्सो वी कैन से दैट कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो किस पर डिपेंड है, मेनली डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, या आल्सो वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो ये वही है, दिया हुआ है, गिवन देयर कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट, फॉर एग्जांपल रेड लाइट, यू नो अबाउट रेड लाइट, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 4.3 to 4.6 into 10 के पावर 14 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, ओके, ऑफ एनी ब्राइटनेस, अंडरस्टैंड, कोई ब्राइटनेस का है दिया, गिवन देयर इंटेंसिटी में साइन ऑन पीस ऑफ पोटेशियम मेटल, है ना, किस पे साइन हो रही है, साइनिंग ऑन द पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर्स, 1 घंटे सा, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्राइटनेस हुआ, इंटेंसिटी जब उसमें क्या हुआ, फॉल किया ब्राइटनेस, है ना, लाइट रेडिएशंस, तो देयर इज नो एनी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन द केस ऑफ पोटेशियम। क्यों नहीं हुआ, यू नो अबाउट ना, क्यों, बिकॉज दिस इज द क्या है, रेड लाइट, देयर इज क्या आता है, रेड लाइट है क्या 4.3 इतना, है ना, 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड, ब्राइटनेस, ओके। तो क्या हुआ वहाँ पे, उसका इवन है ना वीक येलो लाइट, वहाँ पे क्या था, हायर, है ना, लो फ्रीक्वेंसी। तो एज सुन एज इवन ए वेरी वीक येलो लाइट, एक येलो लाइट रहे जो क्या है फ्रीक्वेंसी 5.1 to 5.2 10 का पावर 14 हर्ट्ज, साइन ऑन द पोटेशियम मेटल, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व, जबकि इस केस में क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ इन केस ऑफ येलो लाइट, बट इन केस ऑफ रेड लाइट देयर इज नो, है ना, अकर्स of the frequency, this means ejected of electron, ejection of electron not अगर। तो the threshold frequency v नोट, न्यू नोट, यू नो अबाउट ना, न्यू नोट फॉर पोटेशियम मेटल इज इतना, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 5 into 10 के पावर 14 हर्ट्ज, कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन से इजेक्टेड, बट इन केस ऑफ कितना था, व्हाट इज द रेड लाइट फ्रीक्वेंसी 4.3 to 4.6, तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर द, है ना, पोटेशियम मेटल, ठीक है। तो इस जो 4.3 to 4.6 है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द व्हेन लाइट इज, है ना, व्हाट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी 5.1 to 5.4, है ना, यानी कहते हैं हम क्या कि 5 into 10 के पावर 14 हर्ट्ज, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन आफ्टर, है ना, मेटल सरफेस इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो हुआ कि नहीं केस ऑफ पोटेशियम, दिस ना हुआ ना, दिखा ना। तो इन दिस वे आल्सो वी कैन से दैट व्हाट कि दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या व्हाट कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस क्या कि दैट फ्रीक्वेंसी व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी, अंडरस्टैंड। इन 1905 यू नो अबाउट आइंस्टाइन was able to explain photoelectric effect using the Planck's quantum theory, और उन्होंने क्या हुआ, ये आइंस्टाइन जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, बेसिस पे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंडरस्टैंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है।
क्या कहा उन्होंने कि शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन टू द मेटल सरफेस, शाइनिंग ए मेटल बीम ऑफ लाइट क्या किया, पास किया ऑन टू मेटल सरफेस कैन थ्रू ए व्यूड एज शूटिंग बीम ऑफ पार्टिकल। एक क्या किया उन्होंने, किसके व्यू के आधार पर, शूटिंग बीम ऑफ पार्टिकल को स्ट्राइक किया। द फोटोन्स, उसमें क्या होते हैं, यू नो अबाउट ना कि सनलाइट है फोटोन्स, दैट्स पार्टिकल्स इज नोन एज फोटोन्स। तो व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक ऑन ए इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द मेटल, क्या हुआ कि व्हेन वी स्ट्राइक फोटोन, फोटोन मीन्स वही लाइट पार्टिकल्स, ओके, बीम ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस, ओके, ऑफ द एटम ऑफ द मेटल, तो क्या हुआ कि ट्रांसफर इट्स एनर्जी, तो अपनी एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन। और जैसे ही वो कोलाइड किया फोटोन्स, ओके, दैट्स लाइट, बीम ऑफ लाइट, तो इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ, सडनली इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट विदाउट एनी टाइम लैग और डिले, बिना डिले के टाइम के, जैसे ही वो स्ट्राइक किया जैसे ही वो क्या हुआ, सडनली कंटिन्यूसली, है ना, इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, ओके, व्हेन ए फोटोन इज स्ट्राइक। तो ग्रेटर द एनर्जी पोसेस्ड बाय द फोटोन, फोटोन के द्वारा क्या हुआ, ग्रेटर एनर्जी पोसेस किया गया, तो ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो क्या हुआ, एनर्जी भी क्या हुआ, ग्रेटर ट्रांसफर हुआ इंस्टेंटेनियसली। तो इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो also we can say that in this way what happens, what we can say that okay, so what we can say that if number of what की intensity of light, that is the intensity of the photons of light is maximum, तो then क्या होगा कि ejection is electron is what instantaneously without lagging of the time, without delay of the time they eject the electrons, okay, from the metal surface. तो in this way कि in other words kinetic energy the ejected electrons proportional to frequency, kinetic energy of electron किसके proportional होगा, frequency के, because depending on the light, brightness of the light, depending on the photons, understand. तो since the striking photon has energy equal to h nu, अब वो photon किसके equal हो गया, h nu के frequency, तो इलेक्ट्रॉन एच न्यू आल्सो कॉल द वर्क फंक्शन, एच न्यू क्या है आपका, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब कितना उसमें वर्क फंक्शन हो रहा है, डब्ल्यू नोट। तो देन द डिफरेंस इन एनर्जी क्या हुआ, डिफरेंस इन एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच न्यू कितना उसका फ्रीक्वेंसी था पहले और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम, तो इस ट्रांसफर है द काइनेटिक एनर्जी, तो यही क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ कि कितना उसमें ट्रांसफरिंग हुआ, ओके, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ, है ना, एनर्जी प्रिंसिपल, यही आपका क्या है, इट आल्सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द इक्वेशन, देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट अबाउट ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, न्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हम वी का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, कि हम काइनेटिक, है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज देयर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। तो वेयर यू नो अबाउट ना एम सी ई एम ई क्या है आपका, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड भी द वेलोसिटी ऑफ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, भी वेलोसिटी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मोर इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर क्या हुआ, मोर बीम ऑफ लाइट, ज़्यादा बीम ऑफ लाइट है, इंटेंस है, तो क्या होगा, लार्जर नंबर ऑफ फोटोन्स अकर्स क्रिएट्स, अंडरस्टैंड। तो इज आल्सो लार्जर द कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंट इन विच ए बीम ऑफ वीकर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एम्प्लॉयड। तो इन दिस वे आल्सो वी कैन से दैट कि दिस इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द, है ना, beam of light, कि how many beam of light strike on a metal surface, that is number of photons is greater than maximum, है ना, maximum क्या, ejection of electron from the metal surface, okay. तो this is also, है ना, depending on the kinetic energy, okay, कि what is the movement of electrons, ejection of electron, understand. And this is the relation given by the, okay, Einstein's h nu equal to, है ना, this is defined also photoelectric effect, h nu naught plus half mv square, h nu you know what now, radiations, okay, h nu naught you know about now, okay, this is the threshold frequency, okay. So this is the formula for, है ना, given by the what, Einstein's, no problem, I hope you have no problem, okay.